So everyone note down. In today's class, we'll continue this chapter functions. And in the last class, I had explained you what do you mean by one function. And a bit I explained you about many one. But मैंने एक भी sums नहीं कराया था many one पे because we know that if a function is not one, what does that mean? It means that the function is many one. तो यहाँ पे लास्ट क्लास के कंसेप्ट को एक सम से मैं वापस से एक बार समराइज कर देता हूँ एंड देन विल मूव टू द टॉपिक एंड सॉरी क्वेश्चन how to prove that a function is many one. Sorry, I explained you one sum based on a function that is fx equal to x square. I remember that. Okay, मतलब many one के एग्जांपल मैंने दिला से दिया था. तो मैं वापस से एक ये समय एक बार बताया था. Then we'll move to the next topic and that is onto and into. So we have been given a function where the domain set is A, where what is the meaning? What is A set A? It is all real numbers except 3. And we have got codomain, which is set of real numbers. The function defined is x minus 2 divided by x minus 3. And we have to show that this function is 1, 1. So you remember how to prove that a function is 1, 1? You know 1, 1 function is also called injective function. Is that clear? तो कैसे हम लोग शो करते हैं कि फंक्शन 1, 1 है? इसके लिए एक assumption लेते हैं हम लोग. Let us assume that x1 comma x2, okay, that belongs to set A be two distinct elements such that their image is same. Now can you tell me what is the image of x1 in the function f? It is f of x1. Now can you tell me what is the image of x2 in the function f? It is f of x2. So we have assumed that the image of x1 and x2 where these two elements are what? Distinct has got what? The same image. So we have made an assumption that, so we know that f of x1 is equal to f of x2. So tell me everyone, if f of x is x minus 2 by x minus 3, what will be f of x1? It will be x1 minus 2 divided by x1 minus 3. So it will be x1 minus 2 divided by x1 minus 3. What will be f of x2? It will be x2 minus 2 divided by x2 minus 3. Now, once इसको solve करने के बाद, we have to prove that x1 equal to x2. If we prove x1 equal to x2, means we have proved that our assumption is false. Okay, and hence the function becomes what? 1, 1. Okay. So for this we will cross multiply. So for this we will cross multiply. So we have x1 minus 2 into x2 minus 3 is equal to x2 minus 2 into x1 minus 3. So let's open the bracket now here. So we have x1 into x2 minus 3 times x1 minus 2x2 plus x on the right side. Again we have got x1 x2 minus 3x2 minus 2x1 plus 6. So we find that 6 gets cancelled, x1 x2 gets cancelled. So we have minus 3x1 on the left side. So bring minus 2x1 on the left hand side. And on the right hand side we have got minus 3x2. Take this minus 2x2 on the right hand side. So we have minus x1 equals to minus x2. Cancelling x minus both the sides, we find that x1 equal to x2. So we can say that therefore f is 1, 1 function. तो ये लास्ट डे हम लोगों ने यही सम किया था. ओके, तो इस तरीके का सम में बस क्या करना है, लास्ट डे हम लोगों ने बस एक सिंपल पॉलिनोमियल किया था. आज बस ये क्या है, रैशनल फंक्शन. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल फंक्शन. So we have, I mean, done one sum based on rational function. Now after this you can copy down the sum and straight away we'll move to the next topic, and that is how to show that a function is onto and into. Okay, so we can copy down this particular example. After this we'll start one onto and into. Now the second type is, you remember in the last class I had explained you that number 1 के अंदर दो points लिखना, that is 1, 1 and many 1. Now and in number 2 you write down 2 points. Now, why I mean number 1 I have written Roman 1, Roman 2? The reason was I said you that a function at a time can be either 1, 1 or it can be. Okay, so that's why exactly same way. अब मैं number 2 के अंदर मैं लिखवा रहा हूँ
the first point that is the first type that is onto. See, onto function is also called surjective function. And the second type we have is into. Into function. Now, how to prove that a function is onto? So pay attention. So let us take one example where we have got set A and another set B. We have got function f. Now we find that in onto, we find that. Achha, tell me what is the range of this particular function? Tell me. ABC. So we find that range is equal to what? Range is equals to A comma B comma C comma D. And you find that this set is equal to what? Set B, which is the codomain set. इसका मतलब अगर range और codomain equal set हो जाए, and means what does it mean? It means that the function is onto. Is that clear, everyone? How to show that a function is onto? To show that a function is onto, you have to find out its range. And if that range set and codomain set is equal set, means we can say that function f is onto function. Is that clear? Okay. तो यहाँ पे देख रहे हैं तुम लोग कि सेट बी में हर एक एलिमेंट का प्रीमेज है, ठीक है. अगर एवरी एलिमेंट हैज गॉट इट्स प्रीमेज, मींस द फंक्शन बिकम्स व्हाट? onto. On the other hand, if a function is not onto, so not onto means what? Into. Is that okay, everyone? So if the function is not onto means the function is into. So I hope you can understand. If it is not onto means what will be the condition? The condition will be that there will exist at least one element in the codomain set which has no प्रीमेज. मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो सेट भी, मतलब कोडोमेन सेट में एक एलिमेंट तो होगा ही जिसका कोई प्रीमेज ना हो. बिकॉज अगर एक एलिमेंट बच गया कम से कम जिसका कोई प्रीमेज ना हो, मतलब रेंज एंड कोडोमेन इज नॉट इक्वल सेट. बट आई होप यू रिमेंबर आई हैड एक्सप्लेन यू दैट रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ that you remember, because we cannot expect that the elements present in the range set will exceed the number of elements in the codomain set, because हम लोग रेंज के अंदर क्या लिखते हैं? कोडोमेन सेट का वही एलिमेंट तो लिखते हैं ना जिसका प्रीमेज होता है. रिपीट, कोडोमेन सेट का हम वही एलिमेंट को लिखते हैं रेंज के अंदर जिसका प्रीमेज हो. अगर मान लो मैंने यहाँ एक लिख दिया एलिमेंट ई, तो बताओ तो ई का प्रीमेज है? तो ई रेंज के अंदर नहीं है. और ऐसा अगर होता है, इट मींस दैट द फंक्शन इज नॉट ऑन टू मींस व्हाट? So if a statement is not true means what? False. You cannot say that no. If a statement is not true means sir it is no. Are you understanding? If a statement is not yes means what? Are you understanding? Yes or no? If a function is, repeat, if a statement is not yes means what? No. Yes. Not yes. Not yes. I asked you not yes. So no. Not Yes नहीं है. So into function now. Now tell me, what is the range of this particular function? The range of this particular function is a comma b. Is that clear? Do you find that this particular set is equal to the codomain set? No. And hence this is not into. I'm sorry, it is not onto. So if it is not onto means I'm talking about into function. So what do you mean by into function? Into function में हम ये बोल सकते हैं that there exists at least one element in the codomain set. कम से कम, at least का मतलब क्या होता है? कम से कम एक एलिमेंट कोडोमेन सेट में तो होगा ही जिसका कोई प्रीमेज ना हो. एक से ज्यादा हो फाइन, कम से कम एक होना चाहिए. ठीक है, तो अगर ऐसा है मतलब इट इज इनटू फंक्शन. इज दैट ओके एवरीवन? नाउ अब हम अगर ऐसे पूछेंगे, ध्यान देना, अगर हम ऐसे पूछेंगे कि क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है? नहीं है. क्यों? क्या कैसा फंक्शन है अगर नहीं है 1 1 तो वो अलग. नाउ आई कैन नॉट से दैट कि क्या सर ऐसा होता है कि अगर एक फंक्शन इनटू है तो वो मेनी वन के साथ होता है? नहीं, ऐसे जरूरी नहीं. इट्स नॉट कंपल्सरी.
Is that okay everyone? Now tell me, this is on to, but अगर हम दूसरा सवाल पूछे कि क्या ये वर्मन है या नहीं, तो क्या जवाब होगा? ये वर्मन है. I hope things are clear now. But so, and you know that range is always a subset of codomain that you have to keep in mind. Is that clear? But why this is not on to? Because there exists CDE, which is ये वर्मन है. Okay, is that clear? And this is we can clearly see that this is minimal. Along with that, अगर हमसे पूछा जाए on to है या into है, तो ये into. क्यों? क्योंकि यहाँ पे CDE जो है इसका कोई प्रीमिस नहीं. Okay, so you can write below this. Right now, everyone. There must exist at least into के अंदर लिखना एक बार, into के नीचे लिखो एक बार. There must exist at least one element in the codomain set which has no preimage. There must exist at least one element in the codomain set which has no preimage. Okay, मतलब कोडोमेन सेट में कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा जिसका कोई प्रीइमेज ना. Is that clear to everyone? Now we'll see few examples and we'll see how to prove that a function is on to या into. अगर ये प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से एक बार नोट करें. Now we have got a function f and suppose this domain set is set A, codomain set is set B, and the function is, let's say, x plus 2 divided by x minus 2. Set A is set of all real numbers except 2. And what is set B? And set B is set of all real numbers except 1. और हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि फंक्शन 1 1 and onto है. क्या शो करना है? Show that the function is, show that f is 1 1 and onto. तो मैं 1 1 अभी नहीं बताने वाला हूँ, ये तुम लोग करना. onto में अभी पता. I'm explaining you onto. Let me complete onto. You all do by your own. 1 1. Okay, so everyone concentrate here. As you know 1 1 तो अभी मत स्टार्ट कर देना, कुछ चीज पे कंसंट्रेट मत कर देना, पहले एक बार onto ढंग से देखो. तो एक बात बताओ, onto प्रूव करने का तरीका क्या है? Can you just repeat once again everyone? Yes, you have to find out range, and if range set is equals to the codomain set, means it proves that the function is. तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, हम बस रेंज निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है. तो यहाँ पे हमारा काम है रेंज निकालना. अब रेंज कैसे निकलता है तो बताओ तो एक बार. रेंज क्या होता है बता सकते हो तुम लोग? अच्छा, डोमेन क्या होता है? इनपुट्स. मतलब जो फंक्शन में हम लोग इनपुट डालते हैं और वो डालने के बाद जो आंसर आता है, आंसर का कलेक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं. सो लेट अस फाइंड आउट कि रेंज सेट क्या है. तो रेंज निकालने का तरीका को ध्यान से एक बार फिर से देख लेना. अगर आता है इट्स फाइन, बट देन आल्सो वंस यू नीड टू सी इट प्रॉपर्ली ताकि तुम्हें समझ में आ जाए. तो याद तो मैंने बताया था कि फंक्शन का मतलब, मैंने उस दिन भी बताया था कि फंक्शन एक्ट्स लाइक अ मशीन एक्चुअली. सो इन द मशीन वी आर पुटिंग एट द प्लेस ऑफ x, आई एम सॉरी, इन द फंक्शन वी आर पुटिंग एज इनपुट वेरिएबल x. हम लोग जो इनपुट लेते हैं दैट इज डिनोटेड विद व्हाट? वेरिएबल x. That x comes from the domain set which is set A, and the definition of this function is x plus 2 divided by x minus 2, and the answer of this particular function x डाला हम लोगों ने, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो आंसर आता है that is denoted with which variable? You know that the answer is denoted with variable y. Y must belong to which set? Set B. What is set B? Set B is the codomain set. Now the question is कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा set A, अगर मान लो मैंने यहां लिखा सपोज सेट ए, ठीक है, ध्यान दो, और यहां मैंने लिखा सेट बी, ठीक है, फंक्शन है यहाँ पे एफ. तो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं, सी पहला बात है कि एक सवाल तो मैं पूछ ही नहीं सकता हूं, एंड व्हाट इज दैट? आई कैन नॉट आस्क यू व्हाट इज द इमेज ऑफ 2 इन द फंक्शन एफ. कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाई आई कैन नॉट आस्क that what is the image of 2 in the function f? Can you explain me this? Sir, because 2 minus 2 is 0 and You just tell me this way कि sir 2 does not belong to the domain of the function. हम लोग फंक्शन में वही चीज डाल सकते हैं जो उस फंक्शन का डोमेन है. क्या 2 एलिमेंट जो है क्या डोमेन के अंदर बिलोंग कर रहा है?
You are correct, you are explaining the entire thing, but you don't need so much of explanation. जो मैंने सवाल पूछा उसका सीधा जवाब ये है कि सर 2 पे फंक्शन, हम 2 पे फंक्शन का आंसर बोल नहीं सकते because 2 does not belong to the domain of this particular function because the domain is set of all elements except 2. Now if I ask you what is the domain of image of 3 in the function f, so can you tell me the answer? मतलब मैं पूछ रहा हूं कि जब x का वैल्यू, ध्यान देना कि जब x का वैल्यू 3 है, ठीक है, तो फिर y क्या है? y यहां बिलोंग करना चाहिए। तो एक बात बताओ, आंसर क्या होगा? What is 3 plus 2? 5. And what is 3 minus 2? 1. So you can see that the image of 3 is what? 5. अच्छा एक बात बताओ, क्या 5 रेंज के अंदर रहे प्रेजेंट है? Yes. क्योंकि 5 3 को डालने के बाद जो इमेज आया वो क्या है? 5. इसका मतलब 5 is an element which belongs to the codomain set जिसका प्रीइमेज है, इसीलिए इसको हम लोग रेंज के अंदर लिखेंगे। Now the question is, अगर मान लो मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि 4 का इमेज क्या है, तो 4 का इमेज क्या है? मतलब मैंने पूछा कि जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू क्या है? तो आंसर क्या होगा? 4 plus 2 6 by 2 is how much? 3. अब मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अच्छा टेल मी व्हाट इज द प्रीइमेज ऑफ 4? है ना सवाल, व्हाट इज द प्रीइमेज ऑफ 4? मतलब मुझे ये पता है कि y का वैल्यू जब 4 है तो x क्या होगा। मैं जानना क्या चाहता हूं, बताओ तो एक बार, सबके बताओ तो क्या जानना चाह रहा हूं कि जब, बताओ टेल मी, जब y का वैल्यू 4 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ऐसे सोचो, जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या है? 5. जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू क्या है? तो जब x का वैल्यू नहीं पता है कि उससे y का वैल्यू 4 है, हाउ टू फाइंड आउट? देयर आर टू वेज। एक हो गया एकदम डायरेक्ट वे, और एक हो गया हम लोग एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। कैसे वो एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे? इसका मतलब मुझे जानना है, we need to know that if the value of y is 4, what is the value of x? What is x? x is the question mark. x क्या है जानना है। तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि इस फंक्शन का इमेज को क्या चीज से डिनोट किया जाता है? याद करो मैंने फर्स्ट डे, आई मीन जो लास्ट क्लास बताया था कि the image of x in the function f is denoted with what? f of x, not y, f of x. x डाला और वो चीज y से डिनोट करा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे ले ली। समझ में आया तो बात? I hope you are getting my point. Now see, अगर मान लो यहाँ पे f of x plus 2 divided by x minus 2 है, तो यहाँ पे हम जानना चाह रहे हैं कि x क्या है? What is x? Is the question mark. And y is 4. तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से हम लोग x को सब्जेक्ट बना दें, x को ऐसे सब्जेक्ट बना दें। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए x वाले सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले लेना, उसके बाद x कॉमन ले लेना तो बच जाएगा y minus 1। उसके बाद यहां से x क्या हो जाएगा बताना एक बार? 3y plus 2 divided by y minus 1। इसका मतलब जब हमें x y का वैल्यू 4 पता है तो ये तो जानना है ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x when y is 4। sorry I'm really sorry, I just took the another value over there by mistake. okay, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान देना एक बार। एवरीवन लिसन हियर, जो लोग ऑनलाइन में फॉलो कर रहे हैं, वो मैंने x plus 2 by x minus 2 को मैं गलती से मैं यहाँ 3 लिख दिया था, ठीक है 2 को मैं गलती से 3 लिख दिया था, तो यहाँ पे मैं इसको बस चेक कर रहा हूँ, मिस्टेक को रेक्टिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स नॉट अ लॉजिकल मिस्टेक बट डेफिनेटली मिस्टेक तो है, ठीक है। तो बस ये एरर था वहां पे मैं कॉपी करने में, तो ध्यान देने को। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके ओके, व्हाट वाज द मिस्टेक आई होप यू आर गेटिंग? इंस्टेड ऑफ यहाँ क्वेश्चन x plus 2 था, x minus 2 था, मैंने वो गलती से यहाँ कॉपी करके x minus 3 लिख दिया था। ऑलराइट, नाउ क्लियर। अब एक बात बताओ, जब y का वैल्यू, आई होप नाउ इट्स क्लियर, ओके, तो यहाँ पे मैं y x जानना है, जब y का वैल्यू क्या है? 4। सो व्हाट इज 4 2 8 plus 2 10। व्हाट इज 4 minus 1? इसका मतलब जब x y का वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू क्या होगा? इसका मतलब व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 4? अब तुमको अब प्रॉब्लम नहीं होगा, एक तुमने एक एक्सप्रेशन जान लिया जिससे फटाफट तुम उसका प्री इमेज जान सकते हो। अब मैं तुमसे ये पूछूं व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 3, लाइक लेट्स से 2, व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 2, तो तुम सवाल अब जवाब फटाफट दे पाओगे। मतलब जब मुझे पता है y का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा? तो 2 2 जो 4 plus 2 6 by 2 minus 1 1 means what is the pre image of 2? 6। अच्छा टेल मी व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 1? क्योंकि 1 पे फंक्शन जब हम 1 यहां डाल रहे हैं y की जगह पे तो क्या है उसका प्री इमेज? अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इस फंक्शन का रेंज क्या है? इस फंक्शन का रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, तो ध्यान देना।
तो रेंज जानने के लिए मुझे याद करो क्लास 7 में भी हम लोगों ने देखा था ये चीज। रेंज जानने के लिए मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को 0 से इक्वलाइज करके और मैं जानना चाह रहा हूं कि व्हाट इज दैट y फॉर व्हिच वी डोंट हैव आई मीन दैट उस पर्टिकुलर वैल्यू का कोई प्रीइमेज नहीं है। सो व्हाट इज दैट y? द y इज 1 व्हिच हैज नो प्रीइमेज। ठीक है, वो y क्या है जिसका कोई प्रीइमेज नहीं है, वो 1 है। तो यहाँ पे 1 छोड़ के इसका रेंज क्या होगा? सो द रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, range is set of all real numbers except 1. And what is this set is equal to? It's equal to the codomain set. So what does it mean? It means that there does not exist single element in the codomain set which has no preimage. तो ये कैसा फंक्शन है फिर? समझ में आया तो सबको को? तो ऑन टू प्रूफ करने का सिंपल तरीका ये है कि तुम बस यहाँ पे क्या करो, जान लो कि व्हाट इज दैट, व्हाट इज द रेंज, और रेंज निकालने का प्रोसेस क्लास 11 में सीखा तुम लोगों ने, बस उसके बाद तो हो जाएगा। फटाफट एक बार कॉपी कर। So once again I repeat. So what I have calculated? I have calculated कि what is the range of the function. So you know that range का मतलब क्या होता है? कोडोमेन सेट का वो सारा एलिमेंट जिसका प्रीइमेज एग्जिस्ट करे, ठीक है ना? तो एक बात बताओ, अगर हम ये फंक्शन देखें तो ये फंक्शन देख के समझ में आ रहा है कि बस एक ही एलिमेंट का प्रीइमेज नहीं होगा। एंड व्हाट इज दैट एलिमेंट? दैट एट व्हिच इट्स डिनोमिनेटर विल बी 0। तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा? 1 पे। तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर को 0 से इक्वलाइज करके जान लिया कि इसका कब किस एलिमेंट पे उसका प्रीमियस नहीं होगा। सो इट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट द कोडोमेन सेट। हेंस वी कैन से दैट देयरफॉर सो f इज onto फंक्शन। सो इट इज onto मींस ये क्या नहीं है फिर? इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर एक और पार्ट था, शो दैट द फंक्शन इज 1। अच्छा, जब एग्जाम में तुम लोग प्रूफ कर रहे हैं ना, तो हमेशा याद रखना onto के प्रूफ के लिए आगे पीछे कोई भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले onto लिखो। आई मीन प्रूविंग में पहले onto स्टार्ट करो फिर 1 1, बट ऐसे लिख देना ये क्या चीज का प्रूविंग है? onto का। अब एक काम करो, खुद से तुम लोग 1 1 का भी प्रूव करके दिखाओ। यू नो हाउ टू प्रूव दैट अ फंक्शन इज 1, सो एवरीवन डू फर्स्ट। Now write down point number 3, I mean type 3, bijective function. Write down a function f is said to be bijective if it is both 1 1 and onto. If it is both 1 1 and onto. Is that clear? तो अगर मान लो सपोज क्वेश्चन में मेंशन हो शो दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, मतलब इनडायरेक्टली तुम्हें ये बोला जा रहा है शो दैट द फंक्शन इज 1 1 and onto ही बोला। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन पॉइंट नंबर 4। Given function f a to b, given f a to b, हाँ लिखो पहले ये लिखो, हाँ 4 के अंदर ये पहले लिखो, ठीक है? 4 के अंदर पहले ये लिखो, उसके बाद अब मैं जो बता रहा हूँ वो लिखो। The inverse of a function f, the inverse of a function f exists, the inverse of a function f exists, in the bracket you write down, that is f is invertible, that is bracket में लिखना, that is f is invertible if f is a bijective function, if f is a bijective function। ओके, एक काम करो ना, 4 के हेडिंग ना एक काम करो ऐसे दे दो, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। 4 का जो हेडिंग है ना ऐसे लिख दो, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। हाँ, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मतलब ये है तुम्हारा कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो फंक्शन कैसा फंक्शन होना पड़ेगा? बाइजेक्टिव।
अब ये क्या होता है इनवर्स? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पार्ट। इनवर्स होता क्या है उसको मैं एक बार समझा दूं, और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स को एक लाइक मतलब थोड़ा बहुत क्या रिलेट करूंगा। अभी मैं वो चीज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, तो हम लोग फंक्शन ही कंटिन्यू करेंगे, बट उस टॉपिक को एक बार मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा। एक बार ध्यान से सबको नोट करें। तो मान लो एक फंक्शन है, आई होप यू ऑल नो दैट एक रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सबको पता है। तो ध्यान से एक बार देखना और मुझे बताना कि इनवर्स पहले क्या होता है, वो चीज मैं बता दूं। एवरीवन लिसन हियर। एक सिंपल एग्जांपल में ले रहा हूं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ विच इज 2x माइनस 1। तो एक बात बताना, अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि इस फंक्शन का 1 पे इमेज क्या है, तो आंसर क्या होगा? अच्छा 2 ले लेते, 1 पे 1 ही है, 2 ले लेते, तो 2 पे इमेज क्या है बताना एक बार। तो वो क्या रहा है, इनवर्स क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। एक जनरल आइडिया पहले दे दें कि अगर मान लो एक फंक्शन पे 2 का इमेज 3 आ रहा है, सो फाइंड आउट आई मीन रिप्रेजेंट अ फंक्शन, आई मीन एक और एक फंक्शन निकालो जिसपे जब मैं उस फंक्शन में 3 डालू तो उसका इमेज क्या है? इज दैट क्लियर एवरीवन? सो व्हाट यू मीन बाय इनवर्स? ये इनवर्स का कांसेप्ट क्या है, ध्यान देना। अगर मान लो एक फंक्शन में 2 का इमेज 3 आ रहा है, सो व्हाट इज दैट फंक्शन जिसपे 3 का इनवर्स 2 आएगा, उस फंक्शन को इसका इनवर्स बोलते हैं। तो मैंने वहां उसको जी से डिनोट किया, बट एक्चुअली उसको क्या जी से डिनोट करना चाहिए? इट इज डिनोटेड विद एफ इनवर्स। ये तरीका है, ये क्या है, तरीका है रिप्रेजेंट करने का। सो लेट मी टेल यू दैट दिस इज जस्ट अ नोटेशन। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट इनवर्स का मतलब जैसे ये पेन है ना, इनवर्स, इनवर्ट मतलब उल्टा। एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट you have got in mathematics a term called reciprocal. Reciprocal is a term used for what? Fraction. But inverse का मतलब inverse वो वाला inverse नहीं, उल्टा। तुम लोग सब जगह उल्टा बोल देते हैं। इनवर्स का मतलब उल्टा नहीं होता है। इनवर्स कंसेप्ट इज रिलेटेड विद व्हाट? इमेज एंड प्री इमेज। मतलब मैंने क्या बताया, एक फंक्शन f है जिसपे इमेज 2 का 3 आ रहा है, तो एक फंक्शन जान बता मुझे, ठीक है, जिसपे 3 का इमेज क्या आएगा। तो अगर ऐसा है मतलब ये f का इनवर्स क्या है, बोलो? f इनवर्स। और f इनवर्स का इनवर्स क्या है? दोनों एक दूसरे का क्या बताना एक बार? इनवर्स है। इज दैट ओके एवरीवन? एंड नोट डाउन दैट f इनवर्स, प्लीज नोट डाउन हियर, f इनवर्स हियर इट्स जस्ट अ नोटेशन, सिंबॉलिक नोटेशन टू रिप्रेजेंट व्हाट, दैट ये इसका इनवर्स है। इसका मतलब ये नहीं होता है, ये मत समझ बैठना कि सर क्या ऐसा होता है, ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। प्लीज नोट इट डाउन, ऐसा नहीं होता। दिस इज, मैंने ये लिख दिया और लिखने के बाद क्या किया, क्रॉस कर दिया, रॉन्ग। जरूर लिखना बगल में ये चीज, दैट ये अगर तुम अज्यूम कर रहे हो, इसको ऐसा मान रहे हो, मतलब एक गलत चीज है। मैं थोड़ी ना पूछ रहा हूं कि फंक्शन का रेसिप्रोकल क्या है, मैं फंक्शन का इनवर्स पूछ रहा हूं। अगर मैं पूछता ये फंक्शन का रेसिप्रोकल क्या है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2x - 1। मैं थोड़ी ना ये पूछ रहा हूं। I'm not asking you this. I'm asking you inverse. And inverse concept is related with what? Like you got a function f जिसपे 2 का इमेज 3 आ रहा है, तो एक फंक्शन बताओ जिसपे 3 का इमेज 2 है। वो चीज मैं जानना चाह रहा हूं, और वो चीज क्या होता है, वो जानने से पहले, वो चीज जानने से पहले तुमको पहले ये जानना पड़ेगा कि क्या किसी भी फंक्शन का हम इनवर्स लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? एक बार मैं एक एग्जांपल बता इस चीज से। अब एक बात बताओ, मैंने थोड़ा वो आइडिया दे दिया, अभी मैं इस चीज के ऊपर आता हूं थोड़े दिन, इसको वापस से मैं लिखूंगा। पहले उस आइडिया से मैं इसको एक बार मैं देखता हूं। सो टेल मी व्हाट इज द इमेज ऑफ a in function f? So what is the, according to this much definition, tell me what is the image of 1 in the function f inverse? A, that's correct. बट ओके, तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि अब मैं इसका इनवर्स लिखूं, ठीक है, तो इनवर्स लिखूं, क्योंकि इनवर्स में क्या होता है कि ये वैल्यू को f में डालते हैं तो 1 आता है। अब मैं वो फंक्शन जहां पे इस वैल्यू को डालूंगा तो आंसर क्या आएगा?
ए, तो मतलब मैं इसको इन्वर्स कर देता हूं। तो मतलब मैं पहले बी लिखूंगा और उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, ए। अब यहाँ पे एफ लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, एफ इनवर्स। अब ये सारे एलिमेंट्स को यहाँ लिख देता हूँ, ABCD यहाँ लिख देता हूँ, ABCD। नाउ टेल मी व्हाट इज द इमेज ऑफ 1, इट्स A, 2 का B, 3 का, 4 का, टेल मी 5 का इमेज है। क्या ये फंक्शन है? क्यों नहीं ये फंक्शन है? क्योंकि एवरी एलिमेंट, याद रखना मैंने फर्स्ट क्लास लास्ट क्लास में समझाया था कि एवरी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। क्या यहाँ पे सेट बी में सारे एलिमेंट का इमेज है? अच्छा ये फंक्शन ये तो क्या है, रिलेशन तो है। ये ऐसा नहीं बोलेंगे सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते, ये रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है। क्यों ये फंक्शन नहीं है? बिकॉज एवरी एलिमेंट इन द डोमेन सेट हैज नो, वी आर फाइंडिंग दैट 5 का इमेज नहीं है। अब एक बात बताओ, अभी जस्ट मैंने लिखाया था इस एक फंक्शन का इनवर्स होने के लिए, रीड करो अपनी कॉपी में, एक फंक्शन का इनवर्स होने के लिए रीड करो अपनी कॉपी में, क्या लिखा था? फंक्शन हैज टू बी, व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन? अच्छा टेल मी व्हाट इज दिस फंक्शन, इज इट 1 1? यस इट इज 1। इज इट ऑन टू? इट इज इनटू। तो ये इनटू और 1 1 ऑन टू दोनों नहीं है, तो ये क्या इनवर्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? और वो हम यहाँ देख भी पा रहे हैं कि हाँ वाकई में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। अच्छा एक और बात, अब एक काम करते, मैंने यहाँ ई जोड़ दिया, ठीक है। अब बताओ तो एक बार कि क्या ये फंक्शन का मैं जब इनवर्स लिखूंगा तो क्या ये अभी भी ये फंक्शन है? अब बताओ ये फंक्शन एग्जिस्टिंग फंक्शन है, क्या था? 1 1 था, मैनी 1 था, दैट्स करेक्ट। क्या था ये? मैनी 1 था। क्या ये ऑन टू था? क्या था ये? अब एक बात बताओ, मैनी 1 और इनटू फंक्शन का इनवर्स है, हो रहा है ये फंक्शन है? क्यों नहीं है फंक्शन, बताओ तो। सबसे पहले ये दो चीज वायलेट कर रहे हैं, एवरी 5 का इमेज नहीं। दूसरा क्या चीज वायलेट कर रहे हैं? 1 टू मैनी। देखो यहाँ पे 4 का 2 इमेज है, यूनिक नहीं है, इसका मतलब है फंक्शन ही नहीं। तो एक फंक्शन का इनवर्स होने के लिए अब मैं जो नया मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से। अब एक फंक्शन का इनवर्स होने के लिए देखो, ये जो मैंने अभी एरो डायग्राम से एक फंक्शन को रिप्रेजेंट किया, अब बताओ तो ये कैसा फंक्शन है? इज इट 1 1? यस। इज इट ऑन टू? यस। तो क्या ये बाइजेक्टिव है? यस। अब देखो इसका जब मैं इनवर्स लिखूंगा तो क्या ये फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है? देखो तो क्या ये फंक्शन है। तो याद रखना है फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो फंक्शन ऐसे नहीं, किसी भी चीज को हम लिख देंगे, वो फंक्शन क्या होना पड़ेगा? द एग्जिस्टिंग फंक्शन हैज टू बी बाइजेक्टिव। व्हाट इज बाइजेक्टिव? अब एक बात बताओ, अब मैंने ये भी बात बोला कि दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, हाँ है दोनों एक दूसरे का इनवर्स। अगर मुझे बोला जाता कि वी हैव गॉट अ फंक्शन एफ इनवर्स, व्हाट इज इट्स इनवर्स? What is this function? It is 1 1? Yes. It is onto? Yes. If the function is on 1 and onto both, means उसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये है। अगर वो 1 1 onto एक फंक्शन अगर 1 1 onto है तो दूसरा उसका इनवर्स भी 1 1 onto होना ही है। तो याद रखना एक फंक्शन का इनवर्स, एक फंक्शन अगर 1 1 onto है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा? वो होना ही है। दिस इज नेचुरल, आई मीन वी कैन नॉट, ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आ भी जाए तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तुमको लॉजिकली समझना पड़ेगा कि अब बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स होता है और उसका जो इनवर्स होता है वो भी बाइजेक्टिव ही आ भी सकता है, ठीक है। याद रखना एमसीक्यू में आ भी सकता है, नोट इट डाउन एवरीवन, एवरीवन नोट डाउन। एंड हेंस वी कंक्लूड दैट अगर मान लो हमारे पास फंक्शन एफ है तो एक बात बताओ, इस फंक्शन एफ का डोमेन क्या है? को डोमेन क्या है और रेंज क्या है? तभी तो ये ऑन टू का। अब इस फंक्शन पे मैं ए का इमेज क्या निकाल रहा हूं? देखो यहाँ पे व्हाट इज द इमेज ऑफ व्हाट? इज दैट क्लियर? अब देखो ए हो गया डोमेन, बी हो गया कोडोमेन, रेंज, तभी ये इन्वर्टिबल है, ये रहा इन्वर्टिबल। अब बी टू ए हो जाएगा। अब इसका डोमेन क्या है? बी है, कोडोमेन और रेंज क्या है? ए है। इज दैट क्लियर? हमेशा याद रखना एक फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है और वो ए टू बी है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? बी टू ए। इज दैट ओके एवरीवन? एक और सवाल लास्ट बिफोर कॉपिंग दिस, एक और चीज। तो एक बात बताओ, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताया था, यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड फंक्शंस। दीज आर ऑल एफ जी एच, जो भी तुम लिखो, एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, एच एक फंक्शन, दीज आर ऑल व्हाट? यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मतलब क्वेश्चन में उसके अनुसार, मतलब फंक्शन के अनुसार कुछ भी, मतलब एक फंक्शन कुछ भी दिया जा सकता है। बट क्या sin sign is a user defined function? It's already defined by someone who is not presently in the earth, वो छा चुका है और हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे sin sign,
cos cos tn tan, ये सब तो ऑलरेडी इसका मीनिंग डिफाइंड है, इसका हम मीनिंग चेंज नहीं कर पाएंगे, इसका हम लोग मीनिंग चेंज नहीं कर पाएंगे. सो टेल मी, जैसे f इज अ फंक्शन, टेल मी एवरीवन, लिसन हियर, जैसे f इज अ फंक्शन, टेल मी व्हाट इज sin sin. It is a, what function is this called? I mean, yes, it's a user, I mean, predefined function, not user defined. But what function is this called? Trigonometric function. If I ask you what is sin pi by 3, what is the answer? Root 3 by 2. Now, similar. Now, if I ask you what is sin inverse pi by 3, what is your answer? Tell me. I'm just asking you the wrong question. I repeat once again, I'm sorry. Sin pi by 3 is root 3 by 2. What is sin inverse root 3 by 2? समझ में? यहां से जो है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है इस टॉपिक से. जो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर है ना, उसको मैं एक्चुअली इसीलिए मैंने फंक्शन से स्टार्ट किया, बिकॉज मैं इसी के अंदर मेन पार्ट खत्म कर दूंगा, तो बस वहां से हम लोग को थोड़ा बहुत समझी बचे. ठीक है, वंस अगेन वन मोर क्वेश्चन. टेल मी व्हाट इज cos पाई बाय 6 का वैल्यू. टेल मी. रूट 3 by 2 होता है ना. cos 30 डिग्री कितना होता है? रूट 3 by 2. अब बताओ मुझे एक बार, cos इनवर्स रूट 3 by 2 कितना होगा? पाई बाय 6. अब एक बात बताओ मुझे तुम लोग, tan पाई बाय 4 कितना होता है? 1. tan पाई बाय 4 मतलब tan 45 डिग्री. और एक और बात, हम लोग डिग्री सिस्टम को भूल जाएंगे. अब हमारे क्लास 12 में डिग्री का कोई काम नहीं है, बस डिग्री को समझाने के लिए, अपने आप को, अपने आत्मा को समझाने के लिए खाली यूज करना, लेकिन कॉपी में लिखने के लिए यूज मत करना. जितना कोशिश भी नहीं, हम बोलेंगे कोशिश भी मत करो, डिग्री में लिखना ही नहीं. बिकॉज डिग्री इज, थिंक दैट वे, डिग्री इज आउटडेटेड नाउ. डिग्री को यूज नहीं करना है. इज दैट क्लियर? ऑब्सोलेट हो चुका है. क्लास 12 में हमें क्या यूज करना है? कौन सा सिस्टम यूज करना है एंगल मेजरमेंट के लिए? रेडियन यूज करना है. बिकॉज रेडियन इज अ आई मीन यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट विच इज अ रियल नंबर. मतलब ये रियल नंबर के इक्विवेलेंट होता है, रियल नंबर होता है मतलब. और ये जो डिग्री होता है ना, उसको यूज नहीं करना. तुम कैलकुलस करोगे, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, एवरीवेयर वी हैव टू यूज व्हाट? रेडियन सिस्टम. इज दैट ओके? अब लेकिन थोड़ी देर बाद ये पता चलेगा, एक बार थोड़ी देर बाद ये पता चलेगा कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट इनवर्टिबल फंक्शंस. एक बार के लिए मैं एक बार पहले यहां तक कॉपी कर लूं, सब कुछ एक एक करके देते बताते जाएंगे तो होगा नहीं. So if tan pi by 4 is 1, what is tan inverse 1? Pi by 4. So I just now I said that जो इंटरवल है, डोमेन एंड रेंज है फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उस इंटरवल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता. फिर क्या करते हैं हम लोग? पहले ये चीज को कॉपी करके थोड़ा दिमाग में पहले जो मैंने बताया वो एक बार पहले सोच लो, उसके बाद हम लोग अभी स्टार्ट. ध्यान देना एक बार. Everyone listening. So we have got a function f. A is a domain, B is the codomain, and we have got a function f. और हमें इस फंक्शन का क्या निकालना? सुनना एक बार बात ध्यान से. Show that f inverse exists and find f inverse. मतलब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे शो करना है कि इस फंक्शन का इनवर्स पहले एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद हमें जानना है कि इसका इनवर्स क्या है, वो हमें जानना है. ओके, सो पे अटेंशन एवरीवन. इसका इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए ऑलरेडी जो चीज था वो तुमने प्रूव कर लिया अपने कॉपी में. देखो यही तो फंक्शन था, मैंने कोई दूसरा नहीं लिया, सेम फंक्शन ही लिया. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन दिया गया. आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू राइट डाउन द आंसर. सो वी हैव बीन गिवन अ फंक्शन f a to b. उसके बाद f of x है x plus 2 by x minus 3, and to show that the function का inverse exists, we have to show the first part, that is we have to show that the function is 1. Is that clear? तो ये 1 1 हो चुका, on 2 हो चुका, वो दो पार्ट में अभी बता नहीं रहा. आई एम राइटिंग दैट, आई होप है ना सबकी कॉपी में तो ऑलरेडी है. अब ऑन टू का में एक चीज अभी काम आने वाला है, ठीक है, वो हम बताते हैं क्या चीज है. ऑन टू में वापस से लेट y इक्वल टू fx. fx is x plus 2 divided by x minus 2. ओके, इसके बाद
क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कॉपी में है तुम्हारी, एक मिनट। तो यहां से x मिल गया 2y plus 2 by y minus 1. So now we find that y minus 1 is equal to 0. So what is the value of y? It's 1. So y, when y is 1, at that time, this 2y plus 2 by y minus 1 is not defined. So what is the range of this function? So the range is set of all real numbers except 1, which is equals to the codomain set. So f is onto. Since f is 1, 1 and onto both, so f is invertible. So we can say that, or we can write directly there. So there we can say that therefore f inverse exists. तो अगर मान लो f inverse exist कर रहे हैं तो इसका inverse कैसे लिखेंगे? This is why I mean explaining this particular sum. Everyone pay attention. तो एक बात बताओ, therefore what is the inverse of f? तो अगर मान लो f is a function तो उसका inverse का notation क्या है? f inverse. अगर ये function a to b है तो ये function क्या होगा? b to a. अब ये function क्या होगा देखना है. Listen here. अब ये function क्या होगा? Inverse क्या होगा? Listen here. ये जो हमने x को सब्जेक्ट बना के रखा है ना, ये x को जो सब्जेक्ट बना के रखा है, ध्यान देना एक बार सबकी, दैट इज 2y plus 2 by y minus 1. ठीक है, ये एक्सप्रेशन में ध्यान देना सबको, ये एक्सप्रेशन में बस y के जगह x को रिप्लेस. सो इफ यू रिप्लेस एट द प्लेस ऑफ yx, व्हाट इज द रिजल्ट यू आर गेटिंग? टेल मी. इट इज 2x plus 2 divided by x minus 1. Is that okay everyone? So tell me everyone, अगर मान लो मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि 1 का इमेज क्या है, फंक्शन f में 1 का इमेज क्या है, तो फिर यहां पे 1 plus 2 हो गया 3 and y minus 2 हो गया -1 -3. अगर मैं तुमसे पूछूं what is the inverse of -3, it is 1, but you can check also. What is -3 into 2? -6 plus 2 is how much? -4. What is -3 minus 1? What is -4 by -4? समझ में आ रहा है? तो कैसे ये दोनों एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन और ये आई मीन नॉट एक्सप्रेशन आई मस्ट से, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स क्यों समझ में आ रहा है? देखो उन्होंने यहाँ पे डाला 1 तो आंसर क्या है? माइनस. देखो यहाँ पे -3 डाला तो आंसर क्या है? समझ में आ रहा है ना सभी को ये चीज? तो ये हो गया तुम्हारा इनवर्स ऑफ फंक्शन. और इस बार तुम्हारे सिलेबस में अब मैं ये बता दूं कि इनवर्स निकालना नहीं है. Just a minute. But why I had explained you? Listen here. But why I had explained you कि inverse कैसे निकाला जाता है? Because it is needed to study inverse trigonometric function. अगर मान लो मैं तुमको ये चीज बताऊं ना तो inverse trigonometric function समझ में नहीं आया. Actually CBSE has cancelled syllabus in such a way कि उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि ये कैंसिल किया तो उसके पीछे रीजन क्या है. बस ऐसे किसी को बोला गया ना कैंसिल कर दो, बस ये पेज काट दो, ये पेज काट दो, बट उसका क्या मतलब क्यों काटा है उसको भी नहीं पता. सो दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस टॉपिक. इसके बाद एक भी मैं सम नहीं कराने वाला हूं इनवर्स का, सिर्फ मैंने एक सम करा है जस्ट टू एक्सप्लेन यू द कांसेप्ट. नहीं तो ना पूरा क्लियर नहीं होता, मतलब चीज पूरा क्लियर नहीं होता मैं बताना क्या चाह रहा हूं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस पार्ट. एवरीवन कॉपीड ऑन दिस.